Good evening, everyone. Today we will start a new chapter, issue of shares. So, in this issue of share, we will study meaning, features, types of company, share capital and its types, issue of share, how it will be treated in the account, forfeiture and reissue of shares. So, first, let me discuss why we need a company. What are the limitations of sole proprietorship and partnership that we have to start a company? Because of limited capital, limited ability, unlimited liability in sole proprietorship and partnership, due to all these drawbacks, we have to start a company. To remove the defects of these two business organization, generally a person start a company. So, what is the meaning of a company? A company is an artificial person created by law, having separate legal identity with a perpetual succession and a common seal. What does it mean? A company is an artificial person. Who is a person? A person who can sign on his behalf, who can take property on his own name. Likewise, a company can also have its name. It can sign with its name. It can take any property on its name. That's why we said a company is an artificial person. Now, created by law. Who creates a company? Companies Act 2013. Company Act 2013 creates the company. That's why it is created by law. Having separate legal identity, having separate entity. Its identity is totally separated from its members. It means that if members of the company will go, whether they will come, it doesn't affect the company. It is not a sole proprietorship that owner can affect the firm. In company, there are large number of people having their owners. So by going there or by coming one or two member, it will not affect the existence of the company. That's why we said that the company is having separate legal identity. With a perpetual succession means members may come, members may goes out, but the company may run forever. Company's existence will not affected by coming or going of members. And last one is having a common seal. Common seal means a signature seal. Company can sign on its name. As we discussed that company is an artificial person. And who is a person? A person who can sign on its name. So company is not a natural person. It cannot sign by itself. So it have a common seal with the help of which it creates a sign. So company is an artificial person created by law, having separate identity with a perpetual succession and a common seal. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी. फीचर्स, सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन. ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. लाइक पहले कंपनीज एक्ट कौन सा होता था 1956. तो चाहे कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाला एक्ट, किसी के भी थ्रू कंपनी क्या हो सकती है, इनकॉर्पोरेट हो सकती है. सेकेंड है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, separate from its member, separate from its shareholder. It is an autonomous body, self-controlling. It can enter into contracts with any person with its name. It can open a bank account on its name. It can sue on other person. It can be sued by its members as well as outsiders. क्या मतलब है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो अपने मेंबर से अलग होती है. ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से दूसरे पर्सन्स के ऊपर केस कर सकती है. कोई दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं. एंड लाइकवाइज इसके मेंबर्स जो हैं, जो भी आउटसाइडर्स हैं या इसके मेंबर्स हैं, दोनों पर कंपनी केस कर सकती है और दोनों कंपनी पर भी केस कर सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो अपने मेंबर से अलग होती है. फिर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस जो है कंपनी का इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, डेथ, लुनेसी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ. सो it is
डिपेंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी क्या मतलब है कि मेंबर्स जो होंगे वो कंपनीज में आ भी सकते हैं, कंपनी से जा भी सकते हैं। उनकी इंसॉल्वेंसी का, उनकी डेथ का, उनके रिटायरमेंट का, उनके आने या जाने से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में सपोज 50 मेंबर्स ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, अब उन 50 मेंबर्स में 2 साल के बाद 5 मेंबर्स रिटायर हो गए या कंपनी को छोड़कर चले गए या उनकी डेथ हो गई, कोई भी रीज़न से वो कंपनी को छोड़ जाते हैं, इससे कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी विल रन फॉर एवर। उस पर कम मेंबर्स के आने या जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर 10 नए और मेंबर्स आ गए तो भी कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है कॉमन सील। क्योंकि कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, कंपनी इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, सो हम कहते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है? क्योंकि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये अपने नाम से साइन कर सकती है। अब अपने नाम से साइन कर सकते हैं, साइन करेगी कैसे? ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो साइन कैसे करेगी? तो इसके लिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ठीक है। कंपनी की एक स्टैम्प पैड होती है, देखा है ना किसी भी कंपनी की, या किसी भी आप स्कूल में जाएं, आप स्कूल में फीस पे करते हैं, तो फीस जब आप पे करते हैं आपको स्कूल की जो स्टैम्प पैड होती है वो लगी हुई मिलती है। उसका मतलब क्या है कि स्कूल इज ऑथोराइज टू साइन बाय इट्स नेम। सेम वे अ कंपनी इज ऑल्सो ऑथोराइज टू साइन बाय इट्स नेम। और वो नेम से साइन कैसे होंगे? कंपनी की स्टैम्प पैड से, कंपनी की कॉमन सील से, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी में बनते हैं, जो भी इसके डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट, उन सब पर कंपनी की सील लगी होती है। क्लियर? इसी को बोलते हैं कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। और इस सिग्नेचर के बिना कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा जब तक कि ये कॉमन सील नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। See in this chart we can see there are generally 3 types of company. One is unlimited company, second is company limited by guarantee, third one company limited by shares, and further this company limited by share is divided into private company, public company and OPC. Okay, unlimited company, company limited by guarantee, company limited by share. Further, these company limited by share can be categorized into private company, public company, and a new concept comes in 2013 Act, that is one person company, OPC. Let us discuss what is unlimited company. So unlimited company is a company where there is no limit on the liability of its members. मेंबर्स की लाइबिलिटी एक कंपनी के अंदर कैसी होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन जहाँ पर ये लाइबिलिटी लिमिटेड ना होकर अनलिमिटेड हो जाए, उस कंपनी को हम कहेंगे अनलिमिटेड कंपनी। इफ कंपनी सफर लॉस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेट्स, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कंपनी अनलिमिटेड कौन सी होगी? जिस कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड ना हो, जिस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ना हो। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी के मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लिया जा सकता है, ऐसी कंपनी को हम कहेंगे अनलिमिटेड कंपनी। सो दिस टाइप ऑफ कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं होती, इंडिया में नहीं है ऐसी कंपनी, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड to the extent of the guarantee given by them in the event of winding up of the company. वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाती है। तो जब कंपनी बंद होगी उस केस में मेंबर्स ने क्या बोला हुआ है कि हम कितना तक पे कर देंगे। मान लो कंपनी को लॉस हो गया 5 करोड़ का, ठीक है। अब कंपनी बंद हो रही है, 5 करोड़ का लॉस हो गया। एक तो कंपनी के मेंबर्स ने कितना कितना एश्योर किया हुआ है, कितनी गारंटी दी हुई है कि हम लॉस होने पर इतना पेमेंट कर देंगे। सपोज एक मेंबर ने बोला था इफ़ देयर विल बी लॉस आई विल पे 2 करोड़, तो उसने 2 करोड़ की गारंटी दी है। सपोज अनदर मेंबर है, उसने 3 करोड़ की गारंटी दी है, तो टोटल लॉस हुआ था 5 करोड़ का। तो मेंबर्स ने जो गारंटी गिवन है, तो ऐसी लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी कब अराइज हुई? जितनी उन्होंने गारंटी दी हुई थी। लॉस तो 5 करोड़ का था, लेकिन हर मेंबर को 5 करोड़ नहीं देना, कितना देना? जितनी उन्होंने गारंटी दी है। एक मेंबर ने 2 करोड़ की गारंटी दी तो वो 2 करोड़ देगा, एक मेंबर ने 3 करोड़ की गारंटी दी है वो 3 करोड़ रुपए देगा। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल अराइज
ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। होप सो आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया है। यहाँ तक का करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।